When we talk of health, the first thing that comes to one's mind is, of course, the physical health. So, how can we shy away from throwing some light on physical health? And who better than the next speaker? The next big thing that, as a matter of appreciation and as a matter of fact, I'd love to tell you is I have seen transformation right before my own eyes. That is how intensely this guy worked for physical fitness. He was over 110 kgs, and to now being just around whatever 70 odd kgs that he is, from being an underconfident, unprepared, kind of sluggish guy to being the fittest of our group, of our friend circle, and not just our friend circle, one of the fittest people around. From getting an article published in Times of India about his transformative journey to being now a certified fitness coach, helping hundreds and thousands of people take onus of their physical health. This guy has seen life from both the ends of the table, from both sides of the table. So, without much ado, let me invite my good friend, Mr. Abhishek Jain, for delivering his talk on the topic high intensity health. So yeah, hi guys. Good morning. It's a bright morning outside today in Bikaner. Bikaner में बहुत गर्मी. I don't know आप लोग कहाँ से देख रहे हो, but it's a bright good morning today. And thank you, Pradhan, for honoring me beside every big stalwart in their own arena. Listening to them, I think जितना हम पढ़ते हैं ऐसा लगता है कि वो भी बहुत कम है. When you listen to everyone speaking from their own arena, it's amazing. Little insights. तोशेंद्र सर से जो एक इन्होंने सेशन दिया, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सेशन अपॉन मेंटल हेल्थ. द थिंग विद मेंटल हेल्थ या इमोशनल हेल्थ में ये बात आती है कि आपके अलावा शायद सामने वाले को पता नहीं होता कि आप उस पर्टिकुलर मेंटल हेल्थ इशू से फेस कर रहे हो, उससे गुजर रहे हो. राइट, आपको पता होता है. आप अगर भीड़ में जाओगे आज अपने 100 लोगों की भीड़ में, तो आप हार्डली बता पाओगे कि समवन इज फेसिंग फ्रॉम एनी मेंटल हेल्थ इश्यूज या फिर इमोशनल हेल्थ इश्यूज. इट्स यू. आपको पता है. आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे तब तक शायद सामने वाला आपकी मदद नहीं कर पाएगा. बट वेयर आई कम फ्रॉम, फिजिकल हेल्थ ऐसी चीज है शायद आपको नहीं पता लेकिन सबको पता होती है कि आप फिजिकल हेल्थ इशू से गुजर रहे हो. राइट, आप बाहर जाओगे, चाहे वो छोटा बच्चा है चाहे वो बूढ़ा आदमी है, वो बता देगा कि अरे आप थोड़ा वजन डाल लिया यार, थोड़ा कमजोर लग रहा है. शायद आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आपके सामने वाला जो भी है, चाहे वो स्ट्रेंजर है चाहे आपका फैमिली मेंबर है, फ्रेंड है, वो बता देगा कि हाँ, यू आर फेसिंग सम सॉर्ट ऑफ physical health issues. And that is the number one reason I talk about physical health, because unless and until your physical health is in check, uh, I've seen people जो ज़्यादा better physical conditions में होते हैं, they have tender or lower rate of any mental health issues. I know it's a very vast statement, but comparison के अंदर जिनकी physical health ज़्यादा better होती है, they have some sort of lesser mental health या फिर emotional health issues होते हैं comparatively. For example, कि अगर कोई आदमी is overweight, let's say मैं अपनी बात करता हूँ, पुराने अपनी बात करता हूँ, तो I was 114 kgs, right? So आपको जब लोग बार बार बोलने लगते हैं कि मोटा हो रहे हैं, आपके कपड़े फिट नहीं हो रहे हैं, सो यू स्टार्टेड फेसिंग सम सॉर्ट ऑफ इश्यूज मेंटली. अंडर कॉन्फिडेंस, बाहर नहीं जाना, इंट्रोवर्ट एक नाम दे देते हो आप, बिकॉज आप सोशली कॉन्फिडेंट नहीं होते हो. With time being, with my transformation, with going down, I've seen both end, as Pradman said. So now I'm sitting at 75 kgs in a good physical condition. I know how confident I am. And इसके लिए मैंने कोई पढ़ाई नहीं की या फिर कोर्स नहीं किया या फिर कोई टैक्टिक्स नहीं यूज की. It's just like I've just taken good care of my physical health, and I'm very, very content with where I am right now. So in the next 10-15 minutes, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से अपन अपनी फिजिकल हेल्थ को सुधार सकते हैं अपने घर में बैठ के. आपको किसके लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है. एंड विल प्रिपेयर अ डाइट चार्ट एज वेल. मैं आपको बताऊंगा कि आप खुद से अपना डाइट चार्ट कैसे प्रिपेयर कर सकते हो. सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन. Until we are waiting, it was beautifully said by you, Abhishek, कि जब मेंटल हेल्थ इमोशनल हेल्थ इश्यूज होते हैं तो अपने अलावा किसी को नहीं पता होता, और जब फिजिकल हेल्थ इश्यूज होते हैं तो अपने अलावा सबको पता होता है, विच इज वेरी ट्रू. एंड इन फैक्ट, you having faced both ends of the spectrum are, it's something that you must have experienced, right? So also tell, by the time this sharing is happening, also throw a little light कि पहले कैसे थे, क्योंकि मुझे याद है कि मतलब ठीक है हमारी दोस्ती है, बट मैं भी कई बार इसको बोल देता था कि भाई क्या कर रहा है ये फूल के कितना हो जाएगा. तो
throw some light on that as well. एग्जैक्टली मैन, समथिंग लाइक कि आप को जो जानता नहीं होगा ना वो भी आपको आके जज करता है, वो बोलता है, एंड दिस इज वेरी अलार्मिंग या फिर ट्रिगरिंग। आई थिंक बहुत सारे रीजंस होते हैं जब आप बॉडी शेम करते हो किसी को, सो इट डायरेक्टली इम्पैक्ट्स हिज मेंटल इश्यूज, राइट? वो अंडर कॉन्फिडेंस एंड एवरीथिंग हैपेंस बिकॉज कांस्टेंट जजमेंट के थ्रू उसको पास होना पड़ता है। घर वालों से तो ठीक, लेकिन आप जब स्ट्रेंजर्स आपको बोलने लग जाते हैं जिनको आप जानते भी नहीं हो, दे स्टार्ट लुकिंग यू एट इन अ सर्टेन मैनर दैट आप कौन हो यार, क्या कैसा है ये? सो this all things happen. So once I started doing physical training, once I started eating good food, once I started taking care of my health, once I started knowing कि ना क्या जरूरी है physical fitness के लिए, क्या नहीं है, I started realizing कि लोगों का पर्सपेक्टिव है ना जो आपके थ्रू आपके लिए परसेप्शन उनका चेंज हो जाता है, राइट? फ्रॉम laughing at you than to asking you कि कैसे किया यार, how do you do that? So that's a beautiful feeling. I think everyone should have everyone should face this feeling once in their lifetime कि लोग आपसे पूछ रहे हैं आके कि कैसे किया, like people calling you your inspiration. I've seen people coming to me and saying you're one inspiration. It feels good, it definitely feels good. So now I'll talk about ki how things work. Okay, let me share. Okay, so the title of this slide of mine is basically building an obesity-free India. It's sort of bhari title hai, but why I choose this, I'll show you why. So, एक survey के according, the survey happened, I think this year only. उसके according, इंडिया के अंदर currently there are 100 million plus people जो diabetic हैं and 315 million are suffering from hypertension. That's a very alarming number. बहुत बड़ा number है ये. और एक और सर्वे के अकॉर्डिंग जो कि वर्ल्ड में उन्होंने किया है, दैट मींस कि 12 साल के अंदर जो दुनिया की आधी पॉपुलेशन है वो भी हो जाएगी. अगेन इट्स वेरी 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 अलार्मिंग एंड वेरी ट्रिगरिंग सिचुएशन, प्रोवाइडेड कि हमारी जो जॉब्स हैं आजकल वो सिटिंग है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, 9 to 5 जॉब है, फिजिकल एक्टिविटी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है. अगर आप किसी को कहते हो कि वॉक करने चला जाओ तो वो उसको लगता है कि वो एक्सरसाइज करने के लिए बोल रहा है. एंड इट्स वेरी शेमफुल कि समथिंग लाइक वॉकिंग इज ऑल्सो कंसिडर्ड एन एक्सरसाइज. सो obesity is very very important. So I think ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, Pradyuman has already done that, so I'll not waste my time and your time about discussing who I am. So directly going to the first aspect of our physical health, जो diet is the most important. आप एक्सरसाइज 1 घंटा कर सकते हो, योगा कर सकते हो 1 घंटा, लेकिन आप बाकी के 20-22 घंटे में क्या करते हो, क्या खाते हो, अपनी बॉडी को क्या फीड करते हो, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. लेकिन डाइट को लेकर ना एक नेगेटिव कॉनोटेशन है बहुत सारा लोगों में. अगर आप किसी को बोलते हो कि मैं डाइट कर रहा हूँ तो उसके दिमाग में सबसे पहली चीज आती है कि रोटी नहीं खाता होगा, ये चावल नहीं खाता होगा, ये नहीं खाता होगा, चाय नहीं छोड़ दी, दूध छोड़ दिया, राइट? ये उबला हुआ खाना खाता होगा, ब्लैंड खाता होगा. अगर आप किसी को नहीं पता होगा तो वो लोग आजकल कंपनीज बहुत सारी ऐसी मार्केटिंग करती है कि 10 किलो हम लूज करवा देंगे 30 दिन में, राइट? अगर फॉर एग्जांपल अगर आपकी डाइट आप जो फॉलो कर रहे हो उसका कोई भी नाम है, चाहे वो कीटो डाइट है, चाहे वो एटकिंस डाइट है, जीएम डाइट है, सो इट्स नॉट अ डाइट. वो आप मे बी 1 हफ्ता फॉलो करोगे, मे बी 1 महीना कर लोगे, लेकिन उसके बाद आपकी बॉडी का एक थ्रेशोल्ड आ जाएगा व्हेन यू विल कंप्लीट टू गो ऑफ ट्रैक एंड यू विल बी बैक टू वेयर यू वर बिफोर. सो व्हाट एक्चुअली डाइट इज? डाइट जो आप नेचुरल खाना खा रहे हो, जो आप ट्रेडिशनली खाना खा रहे हो, राइट? आप रोटी चावल सब्जी दाल बचपन से खाते हुए आ रहे हो, 25 साल से खाते हुए आ रहे हो, और देन सडनली एक दिन आपको कोई बोलता है कि आपको कल से रोटी नहीं खानी है, आपको वेट लूज करना है. सो वो पॉसिबल नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है. वो आप, मैं कह रहा हूँ 1 हफ्ते फॉलो कर सकते हो, 1 महीना, लेकिन उससे ज्यादा नहीं कर पाओगे, right? So eating good amount of veggies, like vegetables, fruits, including your local traditionally grown up vegetables, and eating a proportionally adequate diet that is good in carbs, that is good in fats, and most importantly, good in protein. Because Indians are the most protein deficient species on the entire planet. So diet आपकी प्रोटीन एफिशिएंट होनी चाहिए, एंड आपके ट्रेडिशनली खाने को जो आप डेली में घर में खाते हो, दैट इज गुड इनफ डाइट, बट कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, राइट? लूजिंग वेट इज नॉट वेरी हार्ड, बहुत बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है. मुश्किल लोग बना देते हैं, कॉम्प्लिकेट करते हैं कि ये करना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा, 2 बार एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, शाम के 6 बजे से पहले खाना खाना पड़ेगा, सुबह 4 बजे पहले वो पीना पड़ेगा, डिटॉक्स ड्रिंक्स लेनी पड़ेगी. इट्स ऑल, आई से इट्स अ फसाड. एक होता है ना कि ये ट्रैप है. अगेन इट्स नॉट सस्टेनेबल. आप वेट लूज करते हो बाय ईटिंग इन अ कैलोरी डेफिसिट, हम इसके बारे में बात करेंगे. बाय ईटिंग गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन, मसल लॉस हमें प्रिवेंट करना है. आप देखोगे लोगों को आजकल व्हेन यू गो आउट की जो 40-50 साल के यंग यंग ही बोलूंगा उन लोगों को, लेकिन दिखते ऐसे हैं कि जैसे कि उनके 50s में हो गए हो, लाइक रिंकल्स ऑन योर बॉडी, देयर स्किन इज लूज,
वीक लगते हैं. सो व्हाई इज दैट? बिकॉज दे आर फेसिंग मसल लॉस. प्रोटीन हमारी डाइट में होगा तो वो मसल लॉस इंश्योर करेगा कि ना. फिजिकल ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? आपको जो मन करता है, चाहे आपको लिफ्टिंग पसंद है, आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पसंद है, आप योगा के अंदर हैं, आपको कोई स्पोर्ट्स खेलना पसंद है, आप स्विमिंग करना चाहते हैं, रनिंग, वॉट एवर, एनीथिंग दैट यू लाइक, यू शुड डू दैट. कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको जाके लिफ्ट करना पड़ेगा, कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको कोई स्पोर्ट्स खेलना पड़ेगा. आपको जो मन करता है, आपको जो पसंद है और आपको जो लंबे टाइम तक फॉलो कर सको, just make sure you're at least giving 1.5 hour every single day for some sort of physical training. Because हमारी जो लाइफस्टाइल, एज आई सेड, वो बहुत सेडेंटरी है. आप सुबह 9 बजे से लेकर 6 बजे तक आपका डेस्क का जॉब है, राइट? उसके बाद आते हो, घर में खाना वाना खाते हो, आपकी फिजिकल एक्टिविटी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है. सो कहीं ना कहीं हमें वो चीज ऐड करनी पड़ेगी. नेक्स्ट पॉइंट आता है कि स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? आपने इतनी ज्यादा मेंटल स्ट्रेस हो गया लोगों को आजकल, मे बी बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल, मे बी देयर इज प्रोफेशनल, पर्सनल लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज्यादा है. स्ट्रेस के कारण लोगों की नींद उड़ गई है. और स्लीप इज समथिंग दैट रिकवर्स योर बॉडी, जहाँ पे आपकी बॉडी रिकवर होती है. आप जिम के अंदर बॉडी तोड़ते हो, आप योगा के अंदर बॉडी तोड़ते हो अपनी, स्पोर्ट्स खेलते हो, आपकी मसल्स ब्रेक होते हैं, तो वो रिकवर कहाँ पे होते हैं? आपकी नींद के अंदर होते हैं. सो मेक श्योर यू हैविंग अ गुड स्लीप रूटीन. फिक्स टाइम होना चाहिए. मे बी आप एक अर्ली आउल मॉर्निंग पर्सन है जो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, या फिर आप समवन इज वेरी लेट आउल जो रात तक करते हैं, बट मेक श्योर आपका एक रूटीन होना चाहिए. और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि डूइंग एवरीथिंग फॉर अ लॉन्ग इनफ टाइम. अंडरस्टैंड दिस थिंग कि अगर आप 10 दिन, 12 हफ्ते, 13 हफ्ते या फिर 4 महीने, 5 महीने तक करके छोड़ के वापस वहीं आ जाओगे जहां से आपने स्टार्ट किया था, सो इट विल ऑलवेज कम बैक टू जीरो. कोई फायदा नहीं होगा. सो ये चीजें आपको फॉलो करनी है लंबे टाइम तक. लंबा टाइम लोगों के लिए हो सकता है लाइफ टाइम तक, राइट? सो मेक श्योर यू आर फॉलोइंग अ सस्टेनेबल प्लान, सस्टेनेबल अप्रोच. आप वो खाना खा रहे हो जो आप लंबे टाइम तक अपनी लाइफ टाइम खा सको, जो आपको छोड़ना ना पड़े बीच में. Okay. So now, because of time constraint, मैं बहुत जल्दी जल्दी जा रहा हूँ. So we are talking about preparing your own diet plan. बहुत easy है. अगर आपको वेट लूज करना है, अगर आपको फैट लॉस करना है, तो सबसे पहले आपको पता चलना चाहिए कि कैलोरी क्या होती है. कैलोरी इज एनर्जी फॉर योर बॉडी. आप खाना खाते हो, आपको कैलोरीज मिलती हैं. आप एक्सरसाइज करते हो, आप कैलोरीज बर्न करते हो, तो कैलोरीज इज एनर्जी. एक होता है मेंटेनेंस कैलोरीज. मेंटेनेंस कैलोरीज वो कैलोरीज होती हैं जिसमें आपका बॉडी वेट सेम रहता है, राइट? फॉर एग्जांपल, अगर आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज 2000 है, अगर आप दिन में 2000 कैलोरीज खा रहे हो और खाते रहते हो 10 दिन तक, तो आपके वेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अगर आपका वेट 80 किलो है तो 10 दिन के बाद 80 किलो ही रहेगा. सो मेंटेनेंस कैलोरीज स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ पे अपन को पता होना चाहिए कि अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज कितनी है, जिसपे अपना वेट ना बढ़े ना कम हो, राइट? ये 100% एक्यूरेट नहीं होंगी, कभी भी नहीं होंगी, बिकॉज ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. आपकी हाइट, एज, योर वेदर यू आर मेल फीमेल, आपकी डेली एक्टिविटी, आपके स्ट्रेस लेवल पे. बट ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हमें कहीं ना कहीं एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए होता है कि कहीं से हम स्टार्ट कर सकें. सो वी हैव टू स्टार्ट समवेयर, एंड मेंटेनेंस कैलोरीज इज द एग्जैक्ट पॉइंट वेयर शुड बी स्टार्ट आवर जर्नी, राइट? अब आपको मेंटेनेंस कैलोरी निकालने के लिए बहुत सारे फॉर्मूला मिल जाएंगे ऑनलाइन, बट सबसे इजीएस्ट है कि अपना वेट आप लीजिए, वॉट एवर योर वेट इज, एंड मल्टीप्लाई इट बाय 15. वेट इन पाउंड्स. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपका वजन 100 kgs है, so in pounds it will be somewhere around 220 pounds, and then you multiply it by 15, you will get your maintenance calories. अगेन, अगर आपको जो नंबर मिलेगा ये वो कैलोरीज होंगी जिसपे आपका वजन ना बढ़ेगा, ना वजन आपका कम होगा. इस पे आपका वजन मेंटेन रहेगा. अगर 80 है तो 80 ही रहेगा, राइट? नाउ अगर अपन को वेट कम करना है तो अपन को मेंटेनेंस कैलोरीज से कुछ कैलोरीज कम करनी पड़ेंगी, और अगर अपन को वेट बढ़ाना है अपना, तो अपन को मेंटेनेंस कैलोरीज के अंदर कुछ कैलोरीज ऐड करनी पड़ेंगी. इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्मूला, राइट? 200 से 500 का नंबर इसलिए आता है क्योंकि वी जस्ट डोंट वांट कि हमारा फास्ट कोई हमें चीज मिले. लाइक आप नहीं चाहोगे कि आपका वजन जल्दी जल्दी गिरे, बिकॉज वो बॉडी के लिए अनहेल्दी है. वो हो सकता है आपको शरीर से बाहर फिजिकली आपको दिख जाए कि आपका वेट अच्छा कम हो रहा है, आप पतले हो रहे हो, बट इंटरनल जो बॉडी के अंदर काम हो रहा है वो गड़बड़ कर रहा है, राइट? वो आपको दिखेगा नहीं जब तक आप ब्लड टेस्ट नहीं कराओगे. अगर आप वेरी लो कैलोरीज पे चले जाओगे तो आप, हो सकता है बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, मिनरल से डिवॉइड हो जाओ. सो मेक श्योर स्टार्ट विद अ वेरी स्मॉल कट, मे बी 200 कैलोरीज से आप मेंटेनेंस में से काटिए, एंड देन स्टार्ट विद योर जर्नी. आपको लगता है कि आपका वेट बहुत धीरे कम हो रहा है, लेट्स से कि एक हफ्ते डाइट फॉलो करने के बाद आपका वजन सिर्फ 100 ग्राम कम हुआ, इट्स वेरी लो. सो कट मोर कैलोरीज, 200 से 400 कैलोरीज कर दीजिए. और सेम गोज विद द गेनिंग वेट. So after finding maintenance calories and going into the deficit, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आता है कि अपन को उस कैलोरीज को इक्वली डिवाइड करना है और प्रोपोर्शनली डिवाइड करना है तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में, दिस प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स.
और इनका सीक्वेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? प्रोटीन इज ऑफ utmost important, followed by fats, and the least important is carbohydrates. Okay, so to divide the macros, there is a very simple formula जो कि आता है कि अपन को सबसे पहले प्रोटीन जानना चाहिए कि प्रोटीन और कार्ब्स आपको 1 ग्राम प्रोटीन और 1 ग्राम कार्ब्स आपको 4 कैलोरीज देते हैं एनर्जी में, और वहीं 1 ग्राम फैट्स आपको देता है 9 कैलोरीज एनर्जी में, विच इज ऑलमोस्ट मोर देन ट्वाइस ऑफ बोथ कार्ब्स एंड प्रोटीन कंबाइंड। प्रोटीन अपनी बॉडी को कितना चाहिए होता है? इसका बेसिक एक सिंपल कैलकुलेटिव मेथड है कि 1 ग्राम प्रोटीन पर किलो ऑफ योर बॉडी वेट आपको चाहिए ही चाहिए। WHO का रिकमेंडेड डेली अलाउंस 0.8 ग्राम्स है, प्रोवाइडेड कि आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, आप अपने बिस्तर पे रहते हो, आप सिर्फ खाना खाते हो, आप ना चलते हो, तब आप कंडीशन में you need 0.8 grams of protein per kg body weight. But for someone who is even slightly active, right, उसको कम से कम 1 ग्राम प्रोटीन डेली चाहिए ही चाहिए। फॉर अ पर्सन जो 80 किलो का है, उसको कम से कम 80 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन डेली चाहिए। सेकेंड इज फैट्स, अगेन वेरी सिंपल फॉर्मूला, 0.8 से 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट पे आप चाहिए फॉर समवन हु इज 80 किलोग्राम्स, एंड उसको 64 ग्राम से लेके 1 ग्राम फैट चाहिए। फैट्स, बहुत सारे तो लोग फैट से डरते हैं और बहुत कम कर देते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए। प्रोटीन एंड फैट्स आर टू ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। अगर आप प्रोटीन और फैट अपनी डाइट में से हटा दोगे तो सूनर और लेटर योर बॉडी विल डाई, फिजिकली बॉडी आपकी यू विल डाई, राइट? बिकॉज अगर आप प्रोटीन बॉडी को नहीं दोगे तो वो आपकी मसल तोड़ के प्रोटीन वहां से ले लेगा। बट फैट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर योर ब्रेन फंक्शन, कॉग्निटिव फंक्शन, आपके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप फैट्स कम कर दोगे तो सूनर और लेटर योर बॉडी विल गो अवे, डाई हो जाएगी। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑफ लीस्ट इंपॉर्टेंस, बट एनर्जी देते हैं बहुत ज्यादा। अगर आप वर्कआउट करते हो, फिजिकली आप बहुत एक्टिव हो, तो आप हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट ले सकते हो। अगर आप फिजिकली कम एक्टिव हो तो आप लो कार्बोहाइड्रेट को लो करके फैट्स बढ़ा सकते हो। सो इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता बेसिकली। फर्स्ट आप प्रोटीन और फैट्स में अपनी कैलोरीज डिवाइड कर दीजिए, एंड देन जो रिमेनिंग हो जाएंगी वो कार्बोहाइड्रेट से आपको मिल जाएंगी। इट्स एज सिंपल एज दैट। Let's start with a scenario. There's a person, there's a friend Anup, whose current body weight is, let's say, 80 kgs. He's a software engineer. He wants to lose weight. लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, 9 to 5 जॉब है, सुबह उठते हैं, बस ऑफिस जाते हैं, आते हैं, घर के साथ फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, एंड ही वांट्स टू लूज वेट। सो सबसे पहला स्टेप जो हमने फॉलो किया था, दैट इज फाइंडिंग मेंटेनेंस कैलोरीज। is 80 kgs, multiply by 2.2 to weights in pounds, and then we'll multiply by 15, we get 2640 कैलोरीज जो इनकी मेंटेनेंस है। मतलब इस वेट पे ना इनका वजन 80 से ऊपर होगा, ना 80 से नीचे जाएगा, इस पे मेंटेन रहेगा। नाउ अपन को अपना वेट कम करना है, इनका वेट कम करना है, तो वील रिड्यूस द कैलोरीज। लेट्स से फॉर राउंडेड फिगर अपन ने 2300 कैलोरीज पे इनकी डाइट स्टार्ट कर दी। अब अपना नेक्स्ट टारगेट है कि हाउ वी हैव टू proportionally divide those macronutrients. So सबसे पहले प्रोटीन को अपन डिवाइड करेंगे। आई एम टेकिंग द मीडियन, सो 1 to 2 ग्राम प्रोटीन आप ले सकते हो। आई एम टेकिंग द मीडियन 1.5। सो अगर 1.5 ग्राम्स प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट लेते हैं तो इनका आता है ऑलमोस्ट 120 ग्राम्स, एंड 120 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन विल गिव 4 कैलोरीज पर प्रोटीन। सो हमें प्रोटीन के थ्रू 480 कैलोरीज मिल रही हैं, राइट? सेकंड इंपॉर्टेंट जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है फैट है, वो हम 1 ग्राम ले रहे हैं, तो 80 केजीज का पर्सन है तो 80 ग्राम्स फैट उसके लिए जरूरी है। एंड एज वी नो 1 ग्राम ऑफ फैट विल गिव यू 9 कैलोरीज, सो वो 10720 कैलोरीज हो गई। अब कार्बोहाइड्रेट्स के बाद बची हुई रिमेनिंग कैलोरीज बचती हैं, दैट इज 1100 कैलोरीज, एंड बिकॉज़ 1 ग्राम ऑफ कार्ब विल गिव यू 4 कैलोरीज, सो अपने पास जो कार्ब्स का नंबर आता है वो आता है 275 ग्राम्स, एंड दिस इज अ वेरी राउंडेड फिगर, राइट? सो फॉर अनूप, जिनका वजन 80 केजी है, उनको वेट लूज करना है, तो उनको टोटल कैलोरीज दिन की चाहिए 2300। उनका प्रोटीन रिक्वायरमेंट है 120 ग्राम, उनका फैट का रिक्वायरमेंट है 80 ग्राम्स, एंड उनका कार्ब्स का रिक्वायरमेंट है 275 ग्राम्स, प्रोवाइडेड हमने इनको फिजिकल एक्टिविटी देनी है, राइट? ये वर्कआउट करते हैं 2 से 3 दिन जिम के अंदर, और 7-8 हजार स्टेप्स डेली के चलते हैं। सो दिस इज वेयर ही विल स्टार्ट। अब इन्होंने स्टार्ट किया, एंड लेट्स से 1 हफ्ते के बाद इनका वजन के अंदर कोई गिरावट नहीं है। लेट्स से 1 हफ्ते के बाद भी इनका वजन 80 केजीज था और 80 केजीज रहा, तो हम नेक्स्ट वीक से 2300 कैलोरीज में से 250 कैलोरीज और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एंड वी विल स्टार्ट नेक्स्ट सेशन ऑनवर्ड्स। लेकिन वो कैलोरीज हम ना प्रोटीन से डिटेक्ट कर सकते हैं, ना फैट से डिटेक्ट कर सकते हैं, वो कैलोरीज हम करेंगे कार्ब से डिटेक्ट, बिकॉज फैट्स एंड प्रोटीन आर इंपॉर्टेंट। कार्ब आपको एनर्जी देते हैं तो हम उसको काट सकते हैं, right? So this is where his fat loss will start, and eventually will progress from this particular point onward, right? But हमने बात कर ली प्रोटीन की, कार्ब्स की, फैट्स की, तो इनका सोर्स क्या है? ये तो एक केमिकल नेम है, या फिर एक तो एक नाम है प्रोटीन। तो आपको क्या खाना पड़ेगा जिससे आपको प्रोटीन मिले, क्या खाना पड़ेगा जिससे आपको फैट्स मिले, क्या खाना पड़ेगा जिससे आपको कार्ब्स मिले?
सो अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन के लिए सबसे नॉन वेजिटेरियन पैराडाइज कहते हैं उनको, चिकन फिश बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन अवेलेबल है, राइट। वेजिटेरियंस के लिए पनीर इज द नेक्स्ट बेस्ट सोर्स, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। अंडे में बहुत अच्छा प्रोटीन होता है, डेयरी, दूध, दही, ग्रीक योगर्ट हमारे यहाँ पे नहीं मिलती, लेकिन ग्रीक योगर्ट इज वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। वे प्रोटीन को मैंने लास्ट में इसलिए रखा है बिकॉज लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन है वे प्रोटीन को लेके कि ये नेचुरल नहीं होता, सेफ नहीं होता, बट अगेन दूध से बनता है, मिल्क प्रोडक्ट है, इट्स कंप्लीटली सेफ, एंड स्पेशली फॉर द वेजिटेरियंस हु वांट टू लूज वेट, whey is one of the best thing they can put in diet, of course apart from paneer, soya chunks as well, और डेयरी के साथ। फैट्स के सोर्सेस भर के हैं हमारे पास। घी द बेस्ट सोर्स ऑफ फैट्स, सबके घर में घी इज द बेस्ट। आई प्रेफर कि आपकी डाइट के अंदर बटर ऑयल यूज होता है तो स्विच फ्रॉम ऑयल टू घी, घी के अंदर बनाइए, इट्स अ गुड सोर्स ऑफ सैचुरेटेड फैट्स। एंड जितने भी नट्स अवेलेबल हैं आपके पास, आमंड्स, कैश्यूज, पीनट्स, सबके अंदर भरपूर मात्रा में फैट्स अवेलेबल है। पनीर इज अगेन अ गुड सोर्स ऑफ फैट्स। सो अगर मैं बात करता हूँ 100 ग्राम पनीर की, तो उसके अंदर 20 ग्राम प्रोटीन है और 20 ग्राम ही फैट्स है। सो पनीर इज अ गुड अमाउंट सोर्स ऑफ प्रोटीन एज फैट एज वेल एज फैट्स एज वेल। एग योक्स, जो अंडे का व्हाइट होता है, वो एग प्रोटीन का सोर्स होता है, लेकिन एग योक्स के अंदर गुड अमाउंट ऑफ फैट्स अवेलेबल होता है। फिशेज एंड रेड मीट्स अगेन नॉन वेज पैराडाइज, वो भर के खा सकते हैं, जिसके अंदर प्रोटीन भी मिलता है और फैट्स भी मिलता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आती है कार्ब्स की। कार्ब्स के सोर्स आपके पास भरपूर है, लाइक आपकी शेल्फ के अंदर, आपकी दराज के अंदर सिर्फ कार्ब्स भरा पड़ा है। इन टर्म्स ऑफ जितने भी नमकीन है आपके पास, वो सारे कार्ब्स है। चावल कार्ब्स, पोटैटो कार्ब्स, फ्रूट्स अगेन कार्ब्स, बाजरा, ज्वार, जितने भी ग्रेन्स है सारे कार्ब्स, किनोआ, लेंटिल्स, सब कुछ कार्ब्स है। दिस इज वाई जो इंडियन डाइट है प्राइमरीली प्रोटीन डेफिशिएंट होती है, बिकॉज हमारे पास मेजॉरिटी सोर्सेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स के हैं, प्रोटीन्स के कम है। And that is why it becomes very essential to adequately add protein intentionally, कि आप जान के डाल रहे हो, राइट। एक टाइम ऐसा था जब लोगों के पास गाड़ियां नहीं हुआ करती थी, एक गली के अंदर में भी एक गाड़ी मिलती थी, दो गाड़ी मिलती थी, लेकिन आज एक गली एक दूसरे हर दूसरे घर में एक एक कार है। बट पनीर के साथ ऐसा सिस्टम नहीं है। पनीर आज भी एक तरीके से लग्जरी है जो आप सैटरडे संडेज को बनाते हो, एंड दैट इज रॉन्ग, राइट। पनीर या फिर कोई भी सोर्स ऑफ प्रोटीन शुड बी देयर इन योर डाइट every single day irrespective, and it's non-negotiable. So this is the diet chart. अब बात आती है कि कई लोगों को लगता है कि ये बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस हैं, ये इजी नहीं होगा, हम कैसे कर सकते हैं। तो उनके लिए एक ऑल्टरनेटिव मेथड होता है जिसको कहते हैं पोर्शन कंट्रोल मेथड, राइट। पोर्शन कंट्रोल मेथड में आप क्या करेंगे, आप अपनी प्लेट लेंगे, राइट, उसको आधा डिवाइड कर देंगे नॉन स्टार्च वेजिटेबल से। नॉन स्टार्च वेजिटेबल्स कौन सी हुई? नॉन स्टार्च वेजिटेबल्स हुई आपकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, या फिर like say spinach हुआ, cabbage, cauliflower, भिंडी, these are all good source of any form of salads। आप अपनी आधी प्लेट उससे भरेंगे, then the remaining half अपन उसको भी दो में डिवाइड करके एक बनेंगे अपनी ग्रेन से, जिसमें आपकी ब्रेड्स हुई या फिर आपके चावल, रोटी, स्टार्ची वेजिटेबल्स में पोटैटोज हो गए, एंड देन द रिमेनिंग विल बी कमिंग फ्रॉम योर प्रोटीन। Assuming कि आप इस तरीके से खाते हैं, then you will be able to see a considerable difference in your lifestyle, in your physical health over a period of time। ये डिफरेंस आपको शायद एक दिन में ना दिखे, ये डिफरेंस शायद आपको एक महीने में ना दिखे, बट एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आप नोटिस करना स्टार्ट कर दोगे। और इन टर्म्स ऑफ फिजिकल हेल्थ, आपका वेट इज नॉट इम्पोर्टेंट, बिकॉज लोग ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं अपने वेट से कि उनका वेट कम नहीं हो रहा, बट वो दूसरी चीजें भूल जाते हैं जो उनकी फिजिकल हेल्थ को डिटरमाइन करती है, उनकी प्रोग्रेस। क्या क्या हो सकती है? एक उनके कपड़े लूज होना स्टार्ट हो गए, पहले टाइट होते थे लेकिन कपड़े लूज हो रहे हैं, वेट कम नहीं हो रहा बट कपड़े की फिट बेटर हो रही है, राइट। बाहर जाते हो, लोग आपको कॉम्प्लीमेंट देना स्टार्ट कर रहे हैं कि यू आर लुकिंग फिट, पतले लग रहे हो, अच्छा लग रहा है। आपका वेट अभी भी कम नहीं हो रहा है लेकिन लोग आपको सो अपने वेट से ऑब्सेस मत होना, डू नॉट गेट ऑब्सेस्ड विद योर वेट। वो एक नंबर है। हो सकता है कि आपने कल रात को ज्यादा पानी पी लिया, हो सकता है आपने कल रात को डिनर लेट किया, हो सकता है आपकी नींद खराब हुई हो, जिस वजह से आपका वेट में कोई गिरावट नहीं आई, मे भी हो सकता है बढ़ जाए, हो सकता है कि आपने मसल्स बना लिए, बट वेट इज जस्ट अ सेकेंडरी मेजर ऑफ प्रोग्रेस। प्राइमरी मेजर इज ऑलवेज द लुक ऑफ योर क्लोथ्स। और उससे भी प्राइमरी मेजर होता है जब आप अपने आप को शीशे में देखते हो, व्हेन यू लुक योरसेल्फ एंड यू फाइंड योरसेल्फ कि यू आर डूइंग समथिंग, आपको दिखता है। आपको पहले जो आपकी चेस्ट पे फैट है, आपकी बेली पे फैट है, वो कम होता हुआ दिखता है आपको, एंड यू नो कि यू आर प्रोग्रेसिंग इन सम वे और द अदर। ओके, सो टू एंड दिस सेशन, आई थिंक बहुत ज्यादा टाइम मैंने लिया है, नहीं लिया, आई डोंट नो, बट टू एंड दिस सेशन आई जस्ट वांट टू कंक्लूड दिस इन 4-5 पॉइंट्स।
कि वेट लॉस इज नॉट समथिंग जो आप बाहर कर सकते हो। आप हो सकता है आप वर्कआउट 1 घंटा कर लो, नहीं हो सकता है 2 घंटा कर लो, लेकिन बाकी के 22-23 घंटों में आप क्या खाते हो, वेट लॉस हैपेंस इन दैट पर्टिकुलर टाइम। इसका भी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि लेट्स से आपने 2 घंटे जिम किया, मेहनत की, 2 घंटे आपने बिल्कुल अपनी बॉडी को तोड़ दिया, एंड लेट्स से यू बर्न ऑलमोस्ट 600 कैलोरीज। आप जिम से बाहर निकले, आपने देखा हलवाई समोसे तल रहा है वहां पे, आप उसकी दुकान पे गए, आपने 2 समोसे खाए, आपको खाने में सिर्फ 10 मिनट लगे, एंड यू टेक बैक 600 कैलोरीज। राइट, 2 घंटे की मेहनत आपने सिर्फ 10 मिनट में खत्म कर दी। एंड दैट इज द रीजन कि यू से दैट यू कैन नॉट आउटरन अ बैड डाइट। अभी डाइट अगर ऑन पॉइंट रहेगी तो आप हफ्ते में सिर्फ 2 दिन वर्कआउट्स भी करोगे तो यू विल गेट गुड रिजल्ट्स। राइट, लिविंग अ फिट लाइफ इज सिंपल बट नॉट इजी, बिकॉज अगेन रेजिस्ट करना अपने आप को उन चीजों से, रबड़ी से, जलेबियों से, कचौड़ियों से, उनकी खुशबू से, और मना करना कि नहीं खाऊंगा मैं बिकॉज आई एम ऑन माई जर्नी, वो ईजी नहीं है। अपने माइंड को ट्रेन करना कि हाँ व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, क्या खाना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, वो बहुत मुश्किल है। सिंपल है, मुश्किल है बहुत है, लेकिन एम कीजिए वर्कआउट्स एटलीस्ट 3 to 4 days, कम से कम हफ्ते में। कुछ भी हो सकता है, जैसे चाहे जिम कर रहे हो, योगा कर रहे हो, स्विमिंग कर रहे हो, आपको बैडमिंटन पसंद है, फुटबॉल पसंद है, वॉट एवर यू लाइक, जस्ट मेक श्योर यू आर जस्ट डूइंग एटलीस्ट 3-4 days ऑफ वर्कआउट्स। जंक फूड जितना अवॉइड करोगे, तो सभी बोलते हैं कि बाहर का नहीं खाना चाहिए। और आई से कि इवन जोमेटो स्विगी को भी अनइंस्टॉल कर दीजिए, बिकॉज उनकी नोटिफिकेशंस आपको कई बार कह देते हैं कि ओके 60% ऑफ है तो मंगा लेते हैं। सो अनइंस्टॉल ऑल दोस थिंग्स। प्रोटीन हर डाइट में होना चाहिए, हर मील में होना चाहिए। अगर आप 3 मील खा रहे हो तो मेक श्योर करो कि आपका जो प्रोटीन इंटेक पूरे दिन का है वो इक्वली डिवाइड हो 3 मील्स में, 30-30-30 वॉट एवर इट इज। वॉकिंग एज ऑफन एज यू कैन। और इसका भी बहुत सिंपल एक ट्रिक है कि आप जब भी कॉल्स पे हो वॉक करना स्टार्ट कर दीजिए। आपने जब भी खाना खाया है उसके बाद 10 मिनट वॉक कीजिए, सोने से पहले 10-15 मिनट वॉक कीजिए। और वॉकिंग इज समथिंग जो बॉडी के लिए स्ट्रेसफुल नहीं होती है, आप घंटों वॉक कर सकते हो बिना थके। So make sure you are incorporating this one habit, this one beautiful habit in your daily diet, daily routine, और encourage other people as well कि walking is जो सब कर सकते हैं। आई थिंक बच्चे से लेके बूढ़े तक सब वॉकिंग कर सकते हैं बिना थके। आप जाओगे पार्क में, लोगों को 80s में देखोगे भागते हुए, चलते हुए, एंड यू शुड सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम दोज पीपल। राइट, आपकी जॉब 9 to 5 है, बट दे आर स्टिल वेक एट 5 in the morning and working out, going for the walk. So walk as often as you can. The last point is most important point. फिटनेस इज नॉट हॉबी। फिजिकल हेल्थ हॉबी नहीं है जो आप 10-12 हफ्तों तक आपने फॉलो की कि मेरे को 12 हफ्ते फॉलो करना है, मेरा वेट कम हो जाएगा और मैं उसके बाद वापस से वैसा हो जाऊंगा, वैसा खाना स्टार्ट कर दूंगा जैसे मैं पहले खा रहा था। नहीं, फिटनेस इज नॉट ए हॉबी, इट्स अ लाइफ स्टाइल जो आप तब तक फॉलो करते रहोगे जब तक आपके अंदर सांस है, लास्ट आखिरी तक। उसमें इंपॉर्टेंट है अच्छा खाना, घर का खाना, प्रोटीन लेना, फिजिकली एक्टिव रहना, एंड ट्राई टू बी एज हैप्पी एज यू कैन। एंड दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप खुश नहीं हो अपनी प्रोग्रेस से, अगर आपको अपनी प्रोग्रेस को डिले करते हो कि मेरे पास मेरा वेट इतना हो जाएगा तब मैं खुश होऊंगा, तो शायद वो कभी नहीं होगा। बिकॉज आप एक लूप होल को चेस करते रहोगे कि मेरा वजन 80 है, मैं 60 पे आ जाऊंगा तब हो जाऊंगा। आप 60 पे आ गए, फिर आप कहोगे कि मैं जब मसल्स बना लूंगा तब खुश हो जाऊंगा। सो अगर इवन इफ यू आर लूजिंग 1 kilo per week, even if you are losing 1 kilo per month, so this is a progress and you should be very proud of yourself, very happy with that particular progress कि आप कल से बेटर हो आज। आप कल शायद 100 थे, आप आज 101 हो इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रेस, आपने बेटर किया। सो या दिस इज फ्रॉम माय साइड। आई थिंक काफी टाइम मैंने ले लिया, नहीं लिया, आई डोंट नो अगेन। सो या इट्स अ गुड सेशन। आई होप मैंने जो आपको बताया सिंपल हो, कॉम्प्लिकेटेड ना हो, और हो सके तो शायद इनकॉर्पोरेट करना, ट्राई करना एटलीस्ट कि आप अपनी डाइट खुद बना सको एक बार, और उसको कंपेयर करना जो आप ऑलरेडी लेते हो। स्पेशली ट्रू फॉर द पीपल हु आर वेरी अनहेल्दी, आई एम सॉरी, बट आप हो तो आपको पता होगा। इफ यू आर ओबीज, ओवरवेट, आपको पता है कि आपकी डाइट क्या है, और नई डाइट आप बनाएं इससे, एंड कंपेयर कीजिए कि कहाँ गलती कर रहे थे, एंड देन कंपेयर द प्रोग्रेस जो अभी तक आपने शायद वो फेस नहीं की थी, या फिर आपने उस चीज को महसूस नहीं किया था, जो आप डाइट बना के और फिजिकल एक्टिव रह के हफ्ते दर हफ्ते महसूस करते जाएंगे। ट्राई टू डू दैट थिंग, एंड या थैंक यू सो मच फॉर द लवली सेशन एंड लवली टाइम। थैंक यू सो मच अभिषेक। इतनी सिंप्लिसिटी के साथ सारी बातें आपने एक्सप्रेस करी, एक्सप्लेन किया, और बहुत सारी अच्छी बातें। Just to give 3 closing remarks on this session, why it is called high intensity health is because I saw that intensity in this guy, in the speaker that you just listened to. He was absolutely on it. मतलब and second thing is, ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं खाते। मतलब जिस भी दिन इस बंदे का चीट डे होगा, we will try to go out,
have a pizza or a pasta or whatever. अब ज़्यादा चीजें ऑनलाइन नहीं बता सकते, but we'll have it all. So ऐसा नहीं है कि इसने कुछ मिस किया per se, but the thing that was really evident in whatever he was doing was, one is the clarity of thought, why he was doing what he was doing, and second was the absolute self determination and self discipline that the guy exhibited. And the result is simple. You don't simply get your article published of your article of transformation published in Times of India. You simply just don't become a sought after Twitter celebrity. So that was Abhishek for you. We will share his contact details in the WhatsApp group. तो अगर किसी को भी पर्सनल कोई भी क्वेरी हो, प्रॉब्लम हो, अपना डाइट चार्ट बनवाना हो, अपना फिटनेस रिजीम सेट करवाना हो, he is a certified fitness coach. He's doing it professionally for quite some time now. So feel free to contact him. We'll be providing all the details in the WhatsApp group. So thank you so much, Abhishek. Thank you so for much, Praveen, enlightening for us on this. yeah, thank you so much, wonderful. and for having me along with all these people जिनकी thoughts अलग अलग फील्ड में अलग अलग मास्टरी के अंदर उन्होंने शेयर की, एंड मैंने पढ़ रखा है इनके बारे में, बट आप नए पर्सपेक्टिव से जब सीखते हो ना, तो वो एक अलग चीज आपको मिलती है. सो एवरी टाइम यू लिसन टू समवन जो कि अपनी फील्ड के अंदर मास्टर है, यू फाइंड समथिंग जो आपको पहले से नहीं पता, उन्होंने आप बताया है बिकॉज उनका पर्सपेक्टिव अलग था, राइट? सो या, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, एंड या, थैंक यू.